بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل، اور پروگرام ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ جی ہاں، ان شخصیات جن پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا۔ ویسے تو ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ کون ایسا امتی ہوگا جس پہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم نہیں ہوا ہوگا؟ لیکن کچھ شخصیات ہیں جن پہ کرم بول رہا ہوتا ہے، وہ چلیں تو کرم بولتا ہے، وہ بولیں تو کرم بولتا ہے، اور ہر شخص ان کو سننے کے بعد یہ کہتا ہے کہ یقیناً اس شخص پہ حضور کا کرم ہے، اس شخص پہ حضور کا کرم۔ اور پھر کچھ لوگوں کے حالات زندگی، کچھ لوگوں کا مکان مسکن سننے کے بعد بھی دل ایک پکار اٹھتا ہے کہ کیسا کرم ہوا ہے رسول اللہ کا اس شخصیت پر۔ ایسی ایک شخصیت آج ہم نے چنی اپنے اس پوڈ کاسٹ کے لیے۔ یاد کیجئے رمضان المبارک کی وہ مبارک گھڑیاں کہ جب بیش قیمت لمحات میں بندہ افطار کے وقت اپنے رب کے حضور ہوتا تھا اور گریہ کناں ہوتا تھا، رب کے حضور گڑ گڑا رہا ہوتا تھا۔ افطار کے وقت حلال اور طیب چیزوں کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہوتا تھا، کیونکہ اس کا حکم جب تک نہ آئے تب تک اس نے ہاتھ نہیں لگانا۔ اور اس وقت افطار دعا کی فضیلت رسول اللہ نے ایسی بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے دار کو جو سب سے بڑی خوشی ملے گی، سب سے بڑی، بروز حشر، بروز قیامت، وہ اس کو اس خوشی پر انحصار ہوگا، اس خوشی کا کہ جو وقت افطار اسے رب تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ہوگی یا روزے دار کو روزہ کھولتے وقت ہوتی ہے۔ یہ دو باتیں ہیں کہ جو خوشی کی معراج ہے، اور اس وقت از فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص بھی محو دعا ہوتا ہے، اللہ کی مہربانیاں اس پر واقع ہوتی ہیں، دراز ہوتی ہیں۔ ماہ رمضان مبارک میں عربی کیو ٹی وی کی ٹرانسمیشن میں نعمت افطار میں جب میں آپ کی خدمت میں ہوتا تھا تو دعا کے لیے مدینہ منورہ سے ایک شخصیت کو ہم پکارتے تھے، ٹیلی فون لائن پر ان کو لیتے تھے اور ان کو زحمت دیا کرتے تھے دعا کے لیے، اور وہ اپنی مصروفیات ترک کر کے دامن احد میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جوار رحمت میں، جنہیں مسکن عطا ہوا، جنہیں مکان عطا ہوا، جنہیں قیام عطا ہوا، مدینے والے کہیں مقامی، ان کے در پہ قیام ایسا قیام اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ وہ بزرگ ہستی کہ جن کا انداز، جن کا کلام، جن کی دعا، جن کا سلام ہو بہو قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ الکریم جیسا ہے۔ مجھے کو دیکھ لیں اب تیرے دیکھنے والے، تو آئینہ ہے میرا، تیرا آئینہ ہوں میں۔ جی ہاں ناظرین کرام، یقیناً آپ جان چکے ہیں، پہچان چکے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ حاجی محمد رفیق نورانی صاحب مدینہ منورہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں کراچی۔ تو آج ہم نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ کو مدعو کیا، اور آج آپ سے متعلق کچھ حالات زندگی اور حضور کا کرم، ہر موڑ، ہر گام، ہر قدم ہم پر حضور کا کرم ہے، اس کا اعتراف کرنے کے لیے آپ کو ہم نے دعوت دی ہے۔ حاجی محمد رفیق نورانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے ہیں اور آپ نے وقت دیا ہے، تو آج کچھ ہم آپ سے متعلق جاننا چاہیں گے۔ ہم کیا، پورا عالم اسلام، مجھے سمندر پار، سرحد پار میسیجز آتے تھے، پیغامات آتے تھے کہ یہ جو بزرگ شخصیت ہیں مدینہ منورہ میں مقیم ہیں جو ہمارے لیے دعا کرتی ہیں، انہیں کہیے گا ہمارے لیے دعا کریں۔ اب بے شمار دعاؤں کے لیے آتی تھی، تو میں آپ سے ہمیشہ، آپ کو یاد ہوگا، وربلی کہتا تھا کہ لوگ مجھ سے دعا کے لیے کہتے ہیں، تو آپ سب کو جو ہے اجتماعی طور پہ سب کے لیے دعا کر لیا کریں۔ جی، اور بوقت افطار بھی ہم اس کا اعلان کرتے تھے۔ ماشاءاللہ آپ نے سب کے لیے اتنی دعائیں کی، ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ جزاکم اللہ، طویل عمر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ حاجی محمد رفیق نورانی صاحب کے تعلق سے میں کچھ بہت ہی مختصراً بتانا چاہوں گا کہ آپ چونکہ معروف اسلامک اسکالر بھی ہیں اور مذہبی اور سماجی شخصیت کے نام سے بھی ایک اللہ نے آپ کو پہچان عطا فرمائی، اور آپ نے تعلیم، جو اعلیٰ تعلیم ہے وہ جامعہ کراچی یعنی کراچی یونیورسٹی سے، کراچی سے ہی اس کا مطلب آپ کا تعلق بھی ہم مزید جانیں گے۔ دبئی متحدہ عرب امارات میں آپ کا قیام 1976 سے 2016 تک رہا۔ محافلوں میں دعا اور درود السلام آپ کی شناخت اور پہچان بنی۔ بینکنگ کریئر ان دبئی اسٹارٹڈ فرام 1976 ٹو 2008، اور اس کے بعد آپ فاؤنڈر ممبر ہیں ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کے، اور الیکٹڈ فرسٹ سیکرٹری جنرل بھی مڈل ایسٹ چیپٹر فرام 2003 ٹو 2013۔ اس کے علاوہ آپ نے ملٹیپل کنٹریز کا وزٹ کیا WMO کے پلیٹ فارم سے، جن میں انڈیا، ساؤتھ افریقہ، سری لنکا اور جاپان سر فہرست ہیں۔ میں آغاز جو ہے آپ سے کروں گا حاجی صاحب اس تعلق سے کہ
آپ یقیناً کراچی آپ کا شہر ہے، شہر قائد، اور اسی میں آپ کی پیدائش ہوئی. تو جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت کیا حالات ہوا کرتے تھے پاکستان کے، کراچی کے، اور کس طرح پھر آپ عہد طفلی سے، عہد بچپن سے آپ لڑکپن تک آئے، اور کیسے گھر فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ کا، آپ کے ماں باپ، آپ کے جد اعلیٰ، پھر اس تعلق سے میں چاہتا ہوں آگے لے کر چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب صلی وسلم دائمن سرمدن ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آمین اللہم. بہت شکریہ سلمان بھائی، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے اچھے پروگرام میں، اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور ظاہر خیال کا موقع دیا. آپ کا بھی، اے آر وائی ٹیم کا بھی، اے آر وائی کے مالکان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ دارین کی سعادتوں سے آپ سب کو مالا مال فرمائے. آپ نے جو اشارہ کیا میری زندگی بارے میں کہ کس طرح سے، تو سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میمن برادری سے میرا تعلق ہے. صحیح. کتیانہ میمن برادری بہت معروف میمن برادری ہے ممبروں کے اندر، ان سے میرا تعلق ہے. ہم لوگ کتیانہ سے تعلق رکھتے ہیں. وہ ڈھنڈ فیملی ہماری جو ہے، معروف فیملی، اس کے ہم ممبر رہے ہیں، اور اسی طرح سے ہماری شناخت ہمارے میمنوں میں ہے. اور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ایڈیشنل میرے ساتھ یہ تھا کہ چونکہ پوری میری فیملی اور میں خود بھی قائد اہل سنت علامہ شاہ نورانی سے بیعت ہیں، تو اس طرح سے لوگ ہمیں نورانی کے طور پہ جانتے ہیں. ساری فیملی بھی اب نورانی کے نام سے مشہور ہے ہماری کتیانہ میمن برادری میں. یہ بہت بڑی شروع کا ماحول جو آپ نے کہا، تو کراچی پرانا ماحول بہت ہی اچھا کراچی ہم نے گزارا. یہاں سے میری میٹرک ہوئی، یعنی آپ جو کہتے ہیں کے جی کی کلاسیں جو شروع ہوئی وہاں سے. تو وہ ایک اسکول تھی گوسیا میمن مدرسہ، اس میں میری تعلیم ہوئی. پھر میں نے جو ہے گریجویشن کیا ایس ایم کالج سے الحمدللہ، اور بہت اچھی طریقے سے میری تعلیم اس طرح سے معمولی آہستہ آہستہ پرورش ہوئی. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ فیملی بہت سمپل، مذہبی لوگ، والد صاحب مذہبی طور پہ، اچھا ماں باپ بھی صوم و صلات کے پابند صوم رہے؟ و صلات کے پابند تھے بہت زیادہ. والد ماجد نور محمد بن عبد الرحمن ڈنڈ رحمۃ اللہ علیہ، والدہ ماجدہ مری حوامہ صاحبہ اللہ کی ولیہ تھیں. وہ جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا تھا رمضان میں، وہ رمضان میں 25ویں شب کو یہاں سے اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئیں، اور بہت ہی نیک خاتون، بہت ہی لوگ، بڑا ان کا مقام تھا ولیہ کے طور پہ. والد صاحب درود شریف، نمازیں اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے. اور بچپن سے ہی سلمان بھائی، بچپن سے ہی میری انگلی پکڑ کر آپ مجھے مسجد لے جایا کرتے. کیا بات ہے. اور مسجد میں لے جا کے عشاء کی نماز جب ختم ہوتی تھی، میمن مسجد بولٹن مارکیٹ وہیں رہتے تھے، تو سامنے بٹھا لیتے تھے، 2 قرآن شریف نکال کے ایک مجھے دے دیتے تھے. بہت چھوٹا تھا، 5-7 سال کی عمر میں. ایک خود پڑھتے تھے اور ریوائز کرتے تھے کلام الہی. اس طرح سے کلام الہی سے بھی ذوق و شوق پیدا ہوا. سبحان اللہ. We can say he was your first mentor, your father. مطلب وہ آپ کو مسجد کی طرف لے گئے. جی بالکل. کیا اچھی بات ہے. کیا وہ مدرسے میں داخل کروایا، قرآن مجید کی تعلیم ہوئی مکمل، ریڈنگ باقاعدہ وہاں بہت، اور اللہ کے فضل سے کلام الہی ختم کیا میں نے. اور پھر مساجد کے اندر جو محافل اس زمانے میں ہوتی تھی، یہ ایسا ماحول نہیں تھا جو آج کل کا ہے. اسلامک اسکالر آ رہے ہیں جا رہے ہیں. وہ تو بڑی راتیں ہوتی تھیں، آپ اس میں بیٹھتے تھے، 50-100 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، درود و سلام کی محفلیں ہیں، ذکر اللہ ہو رہا ہے، علامہ صاحب آ رہے ہیں، کوئی بھی اچھی تعلیم دے رہے ہیں، اچھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ لیکچر دے رہے ہیں. اسی طرح سے مذہبی گروتھ جو ہے اس ماحول میں ہماری ہوئی. یہ ماحول بالکل الگ ہے، وہ ماحول بالکل الگ تھا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ 40-50 سال کے اندر تو پورا نقشہ ہی بدل گیا ہے. جی، لیکن الحمدللہ اس ماحول میں بہت اچھا ماحول انہوں نے پایا. اور میں یہی کہوں گا، والدین کی تربیت ہوا کرتی ہے، بچوں کی جو گروتھ ہوتی ہے، جو والدین کی تعلیم ہوتی ہے اس پہ وہ آگے بڑھتے ہیں، ان کو دیکھ کے آگے بڑھتے ہیں. تو ہم نے رول ماڈل جو بنایا تھا اپنے والدین کو، اور ان سے ہم آگے بڑھے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اچھا مجھے بتائے گا، پھر تعلیم ابتدائی مدرسے میں بھی ہو رہی ہے، اسکول میں بھی ہو رہی ہے، اسکول اور مدرسے کے بعد آگے تعلیم کا سلسلہ کیا رہا؟ پھر اب آپ کا پرسنل انٹرسٹ رہا کالج کی لیول پہ یا یونیورسٹی کے لیول پہ، یا فادر کا جو ہے اس میں بڑا کردار رہا، مدر کا کردار رہا؟ جی، اب یہ تو ہماری بنیادی تعلیم تھی، وہ بہت ضروری سمجھا جاتا تھا، مذہبی تعلیم کی. ہمارے زمانے میں مذہبی تعلیم کو بہت ہی امپورٹنٹ دی جاتی تھی. بچوں کو سب سے پہلے قرآن
बिल्कुल सही। कुरान की तालीम दी जाती थी, अहादीस की तालीम दी जाती थी, उस पे आप जो है आगे बढ़ें और उसके बाद साथ साथ दुनियावी तालीम भी हो। बिल्कुल तो इस तरह से दोनों को कंबाइन करके हम आगे बढ़ते थे। तो अल्लाह का करम था कि दुनियावी तालीम भी मिली, दीनी तालीम भी मिली। वो दीनी तालीम जो थी हमारे वालिद साहब के जरिए हमें ज्यादातर वो गाइडेंस मिलती रही और हम आगे बढ़ते गए, अल्लाह का करम। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आपको मालूम है और आपने भी तस्करा किया था और गालिबन आप तस्करा करेंगे भी, जी, जी। ये वक्त ऐसा आया कि अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह से बहुत ज्यादा क्लोज हो गए हम, बहुत रफाकत मिली, वली कामिल की नजर करम थी कि जो अपनी तरफ खींच लिया मुझे, क्या बात और उन्हीं के होकर रह गए हम। वाह। जी। अच्छा, किस उम्र तक आप जामिया कराची से फारिग हो गए? वो क्या एज थी आपकी? डू यू रिमेम्बर? जी, मैं जो था 19, ये कहना चाहूंगा कि मेरी उम्र जो थी उस वक्त 30 साल थी। अच्छा, 28-30 साल। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। वो फिर मैंने ग्रेजुएशन किया और वहीं से हम तालीम SM कॉलेज जो थी, बिल्कुल सही। इवनिंग में मैं वहाँ स्टडी किया करता था, जाता था। क्या कॉलेज पढ़ते थे आप? कल कॉमर्स के अंदर बिल्कुल हमने। सही। यही वजह है कि आप जो है फिर अमारात में बैंकिंग सेक्टर की तरफ जी। जो है वो गए, क्योंकि आपकी तालीम वही थी। जी हाँ। फिर अमारात कब रुख किया और मुत्तहिदा अरब इमारात में आप कब दाखिल हुए पहली वो मरतबा? ये था कि रोजगार की तलाश में। अच्छा जी ठीक है, मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, फिर ग्रेजुएशन का मरहला आया, तो अब रोजगार की तलाश में क्या किया जाए, किसको प्रीफर किया जाए। तो ये देखते थे हम कि क्या किया जाए, किस जगह पाकिस्तान को प्रीफर किया जाए या फिर बाहर निकला जाए। बिल्कुल सही। तो उस जमाने के अंदर दुबई का एक बहुत ज्यादा माहौल करीब आया और ये मालूम हुआ कि दुबई बेहतरीन जगह है जहाँ हम तालीम भी हासिल कर सकते हैं और वहाँ बहुत अच्छा रोजगार के मौके भी हैं। दोस्त अहबाब भी हमारे वहाँ माइग्रेट कर चुके थे दुबई में, मेरे दोस्त भी, तो उनके जरिए फिर दुबई का रुख किया। और दुबई में सबसे पहली जॉब थी मैंने बैंकिंग की, बैंक ओमान लिमिटेड, उसमें पहला जॉब किया अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ तकरीबन अच्छा खासा वक्त हमने 8-10 साल तक बैंकिंग में लगाया। लेकिन उसके बाद जाहिर है कि वो जहन शुरू से ही मजहबी था और वो चीज जो थी वो गालिब रहती थी। तो उसमें यही था, एक खलिश महसूस होती थी बैंक के जॉब में, और मैंने चाह रहा था कोई बिजनेस वगैरह हो जाए अपना, तो लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया। और उसके बाद जो है 1990 के अंदर, 77 में तो बैंक ज्वाइन की थी, 1990 में जी 1990 के अंदर में बिजनेस की तरफ रागिब हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह एक कंपनी खोली शारजा के अंदर और उसमें मैं बिजनेस करता रहा और अल्लाह ने बड़ी कामयाबी अता की। इस दौरान मुझे मेरी 4 बेटियां हुई माशाअल्लाह। चारों बेटियों को भी मैंने बड़ी अच्छी तालीम अल्हम्दुलिल्लाह दी, उन्होंने भी तालीम ली और माकदा हिजाब के साथ रहती हैं। अब अपने अपने घरों में वो आबाद हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बेटियां हमारी बहुत ही लड़कों से कम नहीं है और बड़ी बड़ी खिदमत हमारी की और अब भी हमारी खिदमत कर रही हैं। वाह वाह। मैं भाई साहब यहीं पर एक ब्रेक लूंगा और देखिए कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी 4 बेटियां थी और आपने 4 बेटियों को बहुत ही आला तरीन परवरिश और मोहब्बत और प्यार करके बताया कि माशरे में बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती। जो बात आपने की जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो वालिदैन जो बेटियों को कभी भी बोझ नहीं समझते बल्कि उनके ज़रिए अल्लाह की रहमत को समेटते हैं और उन्हें अल्लाह की बारगाह में भी सुरखरू करते हैं और दुनिया में भी उनको सुरखरू करते हैं। हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटियां, हमारी पर्दादार, ये पर्दादार भी किसी दुनिया की दौड़ में पीछे नहीं है। ये अपनी हुदूद व क़ुयूद में रहते हुए तरक्की कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं, मुआशरे को बदल सकती हैं, ख़ानदानों को बदल सकती हैं। कुछ बेटियों के हवाले से बात करूँगा इनसे, इनकी बच्चियों के हवाले से ब्रेक के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, खैर मक़दम है आपका प्रोग्राम ये सब तुम्हारा करम है आका। हमारे आज मेहमान हैं मदीना मुनव्वरा के मकामी और मैं रश्क करता हूँ इस ज़िंदगी पे कि जो मदीने में गुजर रही हो। आपकी 4 बेटियां हुई तो माशाल्लाह, मैं जब आपकी बेटियों का नाम आता है आपके चेहरे पे एक खुशी देखता हूँ और एक विक्ट्री वाली बात, एक फतह और जीत वाला बिल्कुल सही फरमाया तासुर देखता हूँ। ये क्या वजह है? कभी ख्वाहिश थी कोई बेटा भी होता 4 में या फिर 4 बेटियों को ही आपने अपना बेटा भी समझा, बेटी भी समझा और आगे लेके बढ़े? दरअसल वो तो फितरी ख्वाहिश होती है बेटे की तो जी बिल्कुल, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र मैं और मेरी एहलिया अदा करते हैं। अल्लाह का शुक्र बार बार अदा करते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने 4 बेटियों से नवाजा और अल्लाह ताला बेटियां भी ऐसी सौम सलात की पाबंद भी, हिजाब में भी रहती हैं और 4 बेटियां आला तालीम याफ्ता हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दुबई में तालीम हासिल की, दुबई में पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। 4 बेटियां वहीं माशाअल्लाह
अल्लाह उनको घर में उनको मिले और अच्छे शोहर और भी सौम सलात की क्यों ना पाबंद होती हैं, दादी भी सौम सलात की अल्लाह पाबंद, अकबर दादा भी सौम सलात के सही पाबंद, फरमाया। दादी वलिया, उधर नानी, उधर नाना, उधर माँ, उधर बाप। सही फरमाया। जब पूरा नस्ल दर नस्ल अल्लाह की बारगाह में सजदा कुना है, जी जी औलाद तो ऐसी होती है। यही ट्रेनिंग होती है। मैं पहले ही बिल्कुल मैंने ऐसे। आपसे अर्ज किया कि वालिदैन पहली सीढ़ी है ऐसा ही एजुकेशन की, बिल्कुल ऐसे। वहीं से तालीम होती है, वहीं से तरबियत होती है। ऐसा ही औलाद की तरबियत अपने घरों से होती है और वालिदैन करते हैं। ऐसा अगर ही। वालिदैन अच्छी तरबियत कर दें तो बहुत आगे चली जाती हैं, बेटियां भी हों या बेटे हों। लेकिन अगर वालिदैन तरबियत की तरफ ध्यान ना रखें और अपने चक्करों में पड़े रहें और उनसे बिल्कुल गफलत बरतें तो फिर रिजल्ट आपके सामने ही क्या बिल्कुल आते हैं। सही। बस अल्लाह ताला हम सबको अच्छा, आपकी बेटियों में कभी ऐसा होता था कि कोई बेटी कहती थी नहीं बाबा मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तुमसे ज्यादा नहीं करते, तो इस तरह आप आपने चारों को इस तरह रखा कि अल्हम्दुलिल्लाह चारों में एहसास। वालिदा साहबा हमारी जो थी वो उनकी एक बात याद थी हमें बहुत अच्छी। बिल्कुल हमारी वालिदा साहबा, तो वो वालिदा साहबा मुझे बहुत चाहती थी लड़के में सबसे रफीक, जो खास चागला हमारे मेमनी जबान में बोलते हैं, चागला या लाडला, लाडला उर्दू में लाडला बेटा है ये। बिल्कुल तो दूसरे बच्चे जो हैं वो बहनें और ये हो, तो फिर वालिदा साहबा सबको बिठा के बताती थी कि शक्कर की छोटी छोटी टुकड़ियां होती हैं, तो ये चारों टुकड़ियां शक्कर की हैं, कोई कम बढ़ती नहीं, चारों बेटे मेरे लिए बराबर हैं और बेटियां भी बराबर हैं और शक्कर के टुकड़े हैं आप क्या लोग। बात है, जी जी, बहुत ही प्यारी बात समझाती, क्या बहुत प्यारी मिसाल देती। और ये बात बताऊं मैं कि मेरी चौथी बेटी का जब जन्म हुआ तो मैं शारजा दुबई में था, तो हॉस्पिटल से कॉल आई तो मैं गया, अजान दी मैंने अपनी बेटी के कान में और माशाअल्लाह दुआ की। वो दुआ करने के बाद फारिग होने के बाद मैं अपने घर आया। घर आने के बाद पहली मेरी तरजीह जो थी वो पीर मुर्शिद अल्लामा शाह नूरानी, मैंने कहा जल्दी खबर कर दूं मैं। वाह। तो मैंने सलाम किया, मैंने फौरन, तो हॉलैंड में थे आप, हाल में सबके लिए बहुत अच्छी बात है समझने के लिए भी। और पीर मुर्शिद किस तरह से तरबियत करते हैं, इससे लोगों को मालूम होता है कि पीर की नजर कितनी कामिल होती है आप पे। तो वो नजर थी उनकी, तो मैंने कहा हुजूर सलाम अलैकुम, तो हॉलैंड में बोले कैसे याद किया भाई रफीक, हम अभी नमाज की तैयारी कर रहे थे फजर की। हजरत ने कहा, मैंने कहा हजरत मेरे यहाँ चौथी बेटे का जन्म हुआ। अब जो अल्फाज जो है ये नोट करने के काबिल हैं सबके लिए, जो व्यूअर्स जो है सुन रहे हैं पीर मुर्शिद अल्लामा शाह नूरानी क्या कह रहे हैं, वो सबके तवज्जो का मैं चाहूंगा तवज्जो दें। इरशाद फरमाते हैं माशा अल्लाह भाई रफीक, आपकी 4 बेटियां, चौथी बेटी होगी, आप 4 जन्नतों के हकदार हो गए भाई। अल्लाहु अकबर। और वाहिद, और ये इरशाद फरमाया, और ये इरशाद फरमाया वाहिद बिन्त वाहिद जन्ना, अल्लाहु अकबर, एक बेटी के अवध एक जन्नत की बशारत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो आप 4 बेटियों के 4 जन्नतों के हकदार हो गए वालिदैन। जी, ये आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है। हाँ, फिर आपकी बात वो ही आगे आए। हाँ, लेकिन बात ये है भाई रफीक कि लड़के की जो है ख्वाहिश जो है ये फितरी ख्वाहिश है, लेकिन लड़के के अवज कोई जन्नत नहीं है, बेटियों के अवज जन्नत है। तो बहुत ही बड़ा मुझे, हमें वैसे ही हमें तो बहुत खुशी थी, हमने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी मेरी वाइफ और मैंने, हम दोनों खुशी हैं और हम बहुत ही खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आपको हौसला मिला 4 बेटियों के एवज 4 जन्नतों का जब मुजदा मिला, जी जी जी, तो फिर आपका हौसला बहुत बड़ा हो गया और दिल से वो जो ख्वाहिश है वो लड़के वाली वो एकदम भूल गए होंगे। जी जी, बिल्कुल ही सही फरमाया, क्या बने। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात इरशाद फरमाइएगा कि हम सुनते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जी। और रफीक सफर जो है, रफीक हयात जो है, जी। उसका एक बहुत बड़ा किरदार होता है। नो डाउट, एक मॉडल तो है ना उसका, अल्लाह ने उसको एक जिम्मेदारी अता फरमाई। सही फरमाया। घर नहीं है अगर रफीक सफर नहीं। सही फरमाया। तो आप तो खुद रफीक हैं, हाजी मोहम्मद रफीक है। शुक्रिया। तो आप रफाकत भी अच्छी मिल गई हमें माशाल्लाह। तो आपकी जो रफीका सफर है, जो रफीका है और रफीक सफर जिसे कहते हैं, उसके हवाले से कुछ इरशाद फरमाएं कि आपकी अहलिया का क्या किरदार रहा। आपकी कहते हैं ना कि इंसान की नशो नुमा उसके माँ बाप से हो रही होती है, लेकिन रूहानी तौर पर बालिदगी में एक अहम तरीन किरदार अल्लाह ने इस रिश्ते को अता फरमाया। बिल्कुल सही फरमाया। ये औरत है जो इंसान को पाक करती है, पाकबाज करती है, आधे ईमान की हिफाजत करती है, बहुत खूब। लेकिन उसके अलावा जिंदगी को संवारने में इसका बहुत बड़ा किरदार जी, नो डाउट, नो डाउट। कैसा किरदार रहा, कैसी खिदमत की एक बीवी ने अपने शौहर की? बहुत ही उम्दा सवाल आपने किया और ये सबके समझने के लिए भी जरूरी है ये कि औरत का क्या किरदार होता है। मेरी 4 बेटियों को जो संवारा, पाला पोषा, ज्यादातर हिस्सा मेरी अहलिया का है। तालीम की तरफ उन्होंने बहुत ज्यादा तवज्जो दी शुरू से ही।
बच्चियों को ट्रेन करके स्कूल भेजना, स्कूल के बाद जब कॉलेज का मरहला तो कॉलेज के अंदर भी उन पूरी तरबियत करती रही। वो खुद भी तालीम याफ्ता है, ग्रेजुएशन उन्होंने कराची वुमन कॉलेज से किया, तो बीएससी में होल फैमिली जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने बहुत अच्छी तालीम दी बच्चियों को, पूरा ट्रेन किया बच्चियों को तालीम के अंदर। और सब बच्चियों ने जो है माशाअल्लाह वो तालीम अच्छी हासिल करने के बाद वो पूरा उन्होंने तवज्जो दी और पूरी ट्रेनिंग करती रही। और अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली जो है हमारी बहुत मारूफ है। दुबई के अंदर भी बच्चियों को हिसाब से भी मेरी एलिया का बहुत बड़ा इसमें नो डाउट उनका किरदार है और उनका कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़ा। और आपकी सक्सेस में भी जी मुझे ज़ाहिर है कि वो दो पहिए चार होते हैं ना, तो ये जी ज़ाहिर है कि मुझे दूसरा ये कि वो ज़ाहिर है कि वो डिस्कस करती हैं हर मामले में मुझसे भी, बच्चियों के मामले में भी डिस्कस किया करती थी। तो हम मिलजुल कर हम लोगों ने उसकी तालीम की तरफ तवज्जो दी और बाकायदा उनको जो भी हो सकता था हमसे बेइज़्निल्लाह, मैं तो अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह बेइज़्निल्लाह वो ट्रेनिंग दी हमने और अल्लाह ने करम फरमाया, बच्चियां भी पर्दे से पाक गई। और सबसे बड़ी खुशखबरी बच्चों के लिए मैं यही कहता हूँ, जब बच्चियां पैदा होती हैं तो माँ बाप के लिए, खास करके माँ के लिए सबसे ज्यादा मरहला यही होता है कि अब उसकी जिंदगी किस तरह से संवारनी है। बिल्कुल ये जब जवान हो जाती है तो उनके लिए अच्छे शौहर चाहिए, बिल्कुल सर, तो उसके लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद होती हैं माएँ बिल्कुल बच्चियों के लिए। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम रहा मेरे साथ में, बहुत ज्यादा शुक्र अदा करता हूँ और सुजूद करता रहता हूँ मैं और मेरी एलिया कि अल्लाह ताला ने दामाद जो दिए हमें, चारों दामाद, सोम और सलात की पाबंदी और हाईली एजुकेशन, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है चारों दामाद और बड़ी बड़ी पोजीशनों पे दुबई पे हैं माशाल्लाह। शुक्र जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक माशाल्लाह बिजनेसमैन है नईम साहब जो हैं लाहौर के अंदर केमिकल बिजनेस, 3 जो हैं बैंकों के अंदर बड़ी पोजीशनों पे हैं। तो बड़ा करम है बड़ा, और सोम और सलात के पाबंद, मजहबी माहौल उनके यहाँ भी है। तो घर के अंदर हमें अल्लाह का करम था कि बेटियों को भी एडजस्ट होने में कोई मुश्किल पेश नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वरना आजकल का जो माहौल है आपको मालूम है, खास करके दुबई हो तो फिर तो आपको मालूम है हर चीज की अब वहाँ आजादी है, लेकिन एक्सेस है, आजादी है, फ्रीडम वर्ल्ड, लेकिन उस पे उन्होंने तवज्जो नहीं दी, बल्कि हकीकत जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल उस पे किस तरह से अमल किया जाए। क्यों ना होता, मकतब मिला, माँ बाप ऐसे मिले जी, और पीछे वो कहते हैं ना नस्ल दर नस्ल इंसान में खून परवरिश पाता है, खून की परवरिश भी नजर आती है। तो बच्चियां क्यों ना सौम सलात की पाबंद होती, क्यों ना पर्देदार होती, कि एक पर्देदार घर में रही, एक सौम सलात वाले घर में रही। तालीम के बाद, जॉब करियर के बाद, सक्सेसफुल हो जाने के बाद, अच्छी उम्दा तर्ज जिंदगी इख्तियार करने के बाद भी मेरी जिंदगी में कोई कसक है, कमी है जो अंदर से मुझे बेचैन रखती है, सताती है। क्या बात है। उस बेचैनी को, उस कसक को दूर करने के लिए एक रूहानी पेशवा, एक कामिल मेंटोर की जरूरत होती है जो हमें दुनिया से निकालकर फिर उक़बा की मनाजिल तय करवाता है, वाह वाह वाह, रूहानी सुलूक की मंजिल तय करवाता है। उसके लिए क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने व्हाई डिड यू चूज मौलाना नूरानी when there was multiple kind of spiritual personalities here in Karachi, आपने नूरानी मियाँ का इंतखाब किया, तो क्या देखा, कैसे मिले, इंस्पायर कैसे हो? ये आपकी जिंदगी का मैं समझता हूँ एक टर्निंग पॉइंट है जी, एक यू टर्न था। आपने एक सक्सेसफुल संजीला बाका जवान है जो पढ़ा लिखा भी है, जो एक अच्छी जॉब पर है, जो अमारात में है माशाल्लाह, एक उसके अपने ठाठ है, लेकिन उसके लिए फिर रूहानी तौर पर ऐसे बालिदगी, तो ये टर्निंग पॉइंट। And why did you choose मौलाना नूरानी only? जी सबसे पहले तो मैं दुआ करूंगा शकील ओज रहमतुल्लाह अलैह के लिए, बहुत ही बड़े उस्ताद मोहतरम थे, बहुत काबिल शख्सियत थी, अल्लाह ताला उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई और मैं बिल्कुल सही फरमाया आपने कि कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद नूरानी की कुर्बत जो मुझे नसीब हुई वो मेरा टर्निंग पॉइंट, बिल्कुल सही फरमाया। मैंने जब उनसे उनके बारे में मालूमात हासिल की तो सबसे पहले तो उनके वालिद माजिद शाह मोहम्मद अब्दुल अलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह को मैंने पढ़ना शुरू किया। वो पढ़ना शुरू किया और उनकी शख्सियत पे मैंने जब देखा कि एक इतने बड़े अल्लाह के वली हैं जिन्होंने 60, 70, 80 हजार गैर मुस्लिमों को दायरे इस्लाम में दाखिल किया है। उनके साहबजादे शाह अहमद नूरानी हैं, तो मैं अगर इनसे शाह अहमद नूरानी से बेत होता हूँ तो ये तो इतने बड़े वली अल्लाह के साहबजादे हैं जो जन्नतुल बकी में हैं, मदफून हैं, और कितने लोगों को आपने दायरा इस्लाम में दाखिल किया, वो कितनी बड़ी इनका मकाम होगा, क्या मकाम होगा। अगर ये सिलसिले में मैं दाखिल हो जाता हूँ तो ये तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती होगी। अच्छा सॉरी इंटरप्ट करता हूँ, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बड़ी अच्छी आपने बात की, ये आपकी जहानत को भी सलाम, शऊर को, कि किसी को किसी
مذہبی یا اسپریچول پرسنالٹی کو جج کرنے کے لیے پہلے یہ دیکھا جائے کہ ان کا بیک گراؤنڈ، فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کے پیرنٹس کون تھے، صحیح، اور آپ نے پہلے ان کے والد کو پڑھا. جی پہلے کیا پڑھا. اچھی بات. تو میں نے کہا کہ اس کے صاحبزادوں کا بھی کیا عالم ہوگا. جی ابھی آج کل تو مریدی پیری تو ایک وہ رسم بن گئی ہے، بزنس بھی رسم بن گئی ہے. تو وہ حضرت کا سوال سب سے پہلے یہ ہوتا تھا، آپ ان کے سامنے یہ سوال رکھیں کہ میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں. اول تو بہت کم مرید بنائے، بہت کم کرتے اس فیلڈ کے اندر انہوں منع نے کر دیتے، پرکھا تھا، بہت پرکھتے تھے کہ وہ قابل بھی ہے. بالکل صحیح. میں جن کی ذمہ داری لے رہا ہوں وہ کہتے تھے مجھے ذمہ داری لینی پڑتی ہے مرید کی. جی پھر آخرت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنا ہوگا. بالکل ایسے. تو بہت بڑا جوب ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں. آپ نے چادر تھما دی اور مرید بن گیا، یہ نہیں ہے. بالکل تربیت ہونی چاہیے، ایک رسپانسبلٹی ہے. وہ یہ کہتے تھے بار بار. اور اس کے بعد تو الحمدللہ میں جاتا رہتا تھا. جب ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے آپ سے کہا کہ پہلی ملاقات میں گرویدہ ہو گیا تھا میں. تو پھر ان کے ذکر محفل جو ہوتی تھی جمعرات کی، وہ باقاعدگی سے میں شرکت کرتا تھا. کچھی میں جی کچھی میں مسجد میں. اور ان کی توجہ میری طرف بہت زیادہ ہوتی تھی. تو جو ذکر ہوتا تھا وہ دل کے اندر بیٹھ جاتا تھا ان کا، وہ دل جو ہے منور ہو جاتا تھا. میں ان سے کہتا تھا حضرت رات پوری اچھی گزری، آپ ذکر میں تھے نا، اس لیے ذکر فن. تو وہ بہت زیادہ توجہ دیتے تھے مجھ پہ بھی. بڑا کرم تھا. ہزاروں مرید تھے ان کے، بے تحاشا مرید تھے، بڑے سے بڑا. سونے کے کانوں والے مرید تھے بھائی سلمان، یقین مانے. بیلینر لوگ، پیسے والے لوگ، لیکن اس اللہ کے ولی کو دیکھیں، کبھی کسی سے ایک پیسہ نہیں لیا زندگی میں، کبھی ایک انویلپ انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا. بالکل ایسا ہی ہے. کہے کہ میں چشمدید گواہ. جی کہے کہ کس لیے مجھے اس کی ضرورت نہیں، اللہ نے بہت دوسروں کی مدد کرتے تھے. جی دوسروں کی مدد کیتے تھے. وہ باوقار زندگی گزاری ایسے ولی اللہ کامل. تو میری خواہش تھی کہ ان کا مرید بن جاؤں، انہوں نے مرید بنا لیا. اور اس میں بھائی عبدالہادی ان کے خادم تھے، ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن. میرے گھر بھی تشریف لاتے تھے، بڑی پیاری شخصیت. وہ پڑھتے تھے شاہ خیر اللہ. وہ پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں. مجھے حضرت، اچھا دوسری بات یہ آپ نے یہاں طرف لے آئے شاہ خیر الرحمان کی طرف. تو یہ حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حکم فرمایا کہ بھائی رفیق، دبئی کے اندر ختم خواجگان آپ شروع کر دیں، دوستوں کو بلا کے پڑھانا شروع کر دیں. اللہ یعنی آپ کو باقاعدہ اجازت دی، باقاعدہ مجھے سونپا یہ کام آپ ہی پڑھائیں گے اور کوئی نہیں پڑھا سکتا. تو اپنے سلسلے سے مجھے اجازت دی. میں باقاعدگی سے 35 سالوں تک دبئی کے اندر جہاں صلاۃ والسلام مسجد میں پڑھاتا رکھا، الفتح مسجد میں جمعے کے بعد. اسی کے ساتھ ختم خواجگان کی محفل جمعرات کو میرے یہاں ہوتی تھی. تمام مکاتب جی یو اے میں 35 سال جی اور نورانی محفل کا نام، اس کا نام ہی نورانی محفل پڑ گیا. بڑی محبت کے لوگ اس میں ماشاءاللہ جمع ہو جاتے. وہ کبھی کبھار تو 20 30 40 ایک وقت ایک سب یہ 70 لوگ بھی آنے تھے. متحدہ عرب امارات کی بات، کین یو بلیو. الحمدللہ. اور یہ وہی برکتیں مل رہی ہیں. جی وہی نورانی میں سے جو سیکھا تھا. تو میں بھی کھڑا ہو کر جب ختم ہوتی تھی محفل تو ایک آدمی کو حضرت جس طرح سے کھانا کھلاتے تھے، جس طرح توجہ کرتے تھے، کیونکہ ان سے ساری اچھی باتیں سیکھی اور کوشش کی کہ وہ باتیں مجھ میں آئیں اور اس پہ میں عمل کروں. تو یہ اللہ کا بہت بڑا شکر تھا کہ اس ولی کامل کی نظر کرم تھی مجھ پہ، بہت بڑی نظر کرم تھی. کیا بات ہے. میں یہیں پر آئی صاحب ایک بریک لینا چاہوں گا. بریک کے بعد انشاءاللہ مزید جانتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. یہ سب تمہارا خوش آمدید ناظرین. پروگرام ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور شخصیت ہیں حاجی محمد رفیق نورانی صاحب. گفتگو جاری ہے. علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے متعلق بات چل رہی تھی کہ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ جس نے آپ کو اور سنوار دیا، آپ پہ آپ کا رنگ نکھار دیا اور آپ کو زندگی کی حقیقت سے آشنا کر دیا اس مرد کامل نے. کچھ ان سے متعلق ایسی کوئی بات بتائیں جو عام فہم ذہن کو معلوم نہ ہو نورانی میاں سے متعلق. جی امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے عالم فاضل. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان سے وابستہ ہیں. اور سر اکراس دا بورڈ لوگ ان کو مانتے تھے. جی خالی پاکستان کی بات نہیں، دنیا بھر میں. اور ان کے مقام کو بہت سے لوگ اب تک سمجھے بھی نہیں، جن کو بتایا بھی نہیں گیا، جن کو معلومات بھی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ فارغ التحصیل ہو رہے ہیں مبارک پور سے. صحیح. آپ کے والد ماجد شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں مبارک پور سے آپ فارغ التحصیل ہوئے. جب اسناد دی جاتی ہیں، فارغ التحصیل عالم دین بن جاتے ہیں تو ان کی دستار بندی کی جاتی ہے. تو ہم دیکھیں کہ ان کی دستار بندی کرنے میں کون کون لوگ شامل ہیں. اللہ صاحبزادہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی دستار بندی آپ نے کی.
दस्तारबंदी आपके हाथों से की। उसके बाद शाह मोहम्मद अब्दुल अलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह भी थे उस जमाने में, उन्होंने दस्तारबंदी की। हजरत मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी जिन्होंने हाशिया लिखा कंजुल ईमान पे, बिल्कुल ऐसे, वो भी मौजूद थे। आपने भी दस्तारबंदी की। तो गुलाम रब्बानी साहब जो आपके उस्ताद मोहतरम थे मुबारकपुर में, उन्होंने दस्तारबंदी की। तो जय्यत उलमा इकराम उस जमाने के मुबारकपुर में बिफोर पार्टीशन आपकी दस्तारबंदी की जाती है, मौजूद हैं। वो तो बहुत बड़ी शहादत थी। अल्लाह बहुत बड़ा एजाज़ है, बहुत बड़ा एजाज़, बहुत बड़ा मकाम था आपका, बहुत बड़ा मकाम था शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का। उसके बाद पाकिस्तान में भी आप और हम सब जानते हैं कि आपका बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा इनका नाम रहा। और बड़े आलिम बाअमल, मैं यही कहता हूँ, आलिम बेबदल और आलिम बाअमल थे। अभी अमल की बहुत ही ज्यादा फिकदान है। आज हमें अखलाक नजर नहीं आते, मैनर्स नजर नहीं आते। नूरानी मियां के अखलाक, मीनार की क्या बात करने। जब मेहमान आता है तो वो आप खड़े होके खाना खिला रहे हैं। इनके आप आलम देखें शाह नूरानी साहब का, जब तक आप नहीं बैठते, जब तक मेहमान रुखसत नहीं हो जाती घर से, इतनी मोहब्बत फरमाते हैं। नंबर 2, मैं ये बताना चाह रहा था कि जुम्मे के दिन तुलबाओं की आप खास करके खाना उनके हजरत के घर पे होता था। जो मजहबी तालीम हासिल करते हैं मदारिस में, शाह नूरानी ने कुछ जो दिए हुए थे, अल्लामा शाह नूरानी, तुलबा तशरीफ लाते थे और हजरत अपने हाथों से एक एक तुलबा को खाना खिला रहे हैं। और ये दूसरी बात आप नोट फरमाएं, इतनी इनकिसारी आप देखें, हम खुद देखते थे, मैं हैरान हो जाता था कि चलमची आपने उठाई हुई है, चलमची और केटल, अल्लाह, और वो जब खाना खा लेते हैं तुलबा, छोटे छोटे तुलबा, आलिम दिन तो थे ही, तुलबाओं को हाथ धुला रहे हैं, अपना साबुन दे रहे हैं, मना कर रहे हैं, लेकिन हजरत नहीं मानते थे, बोले हमारे उलमा नहीं मानते थे। अबू दाऊद मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए थे, बहुत बड़ी शख्सियत गुजरांवाला की। वो जुम्मे के दिन तो खाना खिलाने के बाद हजरत ने चलमची उठाई, बोले नहीं, बोले हजरत ये हमारी रिवायत है, ये मैं इसको नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल सही। तो बाकायदा उनके भी हाथ धुलाए। तो ये बहुत बड़ा, वो कभी अपने आप को बहुत ऊंचा नहीं समझा उन्होंने। इतनी सारी सादगी, बिल्कुल सादगी, कोई छोटा आदमी भी बड़े आराम से उसके आज आप देखते नहीं हाजी मोहम्मद रफीक नूरानी साहब के, आज तो पीर का प्रोटोकॉल ही अलग होता है। पीर तो पाँव जमीन पे नहीं रखता, मुरीद हाथ बिछा लेते हैं और जो है हवा में उड़ रहा होता है पीर आजकल। और वो ताल्लुकात, कॉन्टेक्ट लिस्ट, जनाब मेरा वजीर आजम से ताल्लुक है, मेरा उससे है, मैं तो पीर, मेरी तो गद्दी। आजकल तो बस यही रह गया है पीर का दिखावा। अब ये हजरत ने बताया कि पीर कौन होता है, अपने अमल से हजरत ने वाज़ेह किया कि पीर किस तरह का होता है। देखना है तो शाह नूरानी को देखिए। अल्लाह जी, गौसुल आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का कौन मुरीद सच्चा है, इनके सिलसिले से कौन वाबस्ता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद हैं वो, और सिद्दीकी कौन होता है वो बता रहे थे, वो बता रहे हैं। और आप ये देखें कि आप सबके लिए जानने के लिए जरूरी है कि हजरत शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह सच्चे सिद्दीकी थे। बेशक सच्चे सिद्दीकी थे, खास पहचान थी। मौलाना फजल रहमान मदनी रहमतुल्लाह अलैह आपके ससुर मुझे बताते थे कि वो सिद्दीकी हैं। कारी मोहम्मद मुसलिहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी शख्सियत थे, मैं उनके सोबत में रहता था। भाई रफीक अल्लामा शाह नूरानी सिद्दीकी हैं, सच्चे सिद्दीकी हैं। अब ये बात आती है सामने कि सच्चा सिद्दीकी के क्या माने हैं। तो अब नूरानी मियां रहमतुल्लाह अलैह खुद भी फरमाते थे कि आजकल सब ने अपने ऊपर लेबल लगाना शुरू कर दिया, सिद्दीकी। तो मालूम नहीं आपका शजरा नसब क्या है, लेकिन हजरत का 36वें शजरे पे जाके, हजरत के सैयदना अबू बकर सिद्दीक पे जाके आपका शजरा मिल जाता है। और जितने भी आपके सिलसिले के जो उलमा हैं, जो हिफाज, तमाम उलमा जो है हिफाज कुरान है, और हिफाज कुरान नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं, वो शाह नूरानी तक वो नजर आते हैं हमें। क्या बात तो ये बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन। एक बात जो खास बताना चाह रहा था कि मैंने भी हजरत से कहा था कि वो सिद्दीकी इंसानी क्या है। अच्छा। तो हजरत साहब ने मुझे सहरी के टाइम पे, खाने पे हम थे सब, मुरीदिन भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आजकल सब सिद्दीकी है, लेकिन उनके बारे में बहुत से मुफ्तियान किराम ने, उलमाए किराम ने, बुजुर्गान दीन ने अपनी किताबों में लिख दिया कि सच्चा सिद्दीकी कौन है। अगर माँ बाप की तरफ से सिद्दीकी है तरफेन, तो वो सिद्दीकी की निशान ये है कि उनके अंगूठे पे सांप के डंक का निशान होगा। अल्लाह अकबर। और ये मैंने खुद हजरत साहब ने सहरी के टाइम पे खाने के बाद यूं करके पैर उठा के मुझे दिखाया, देखें भाई ये रफीक इंसान। अल्लाह तो मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया। और मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ सलमान भाई, कि बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ कि मेरे वो कैमरा हो जाता है ना, जो
नसब Capture कलम हो मेरी जाता है, मेरी capture। आंखों ने कैप्चर कर लिया वो, बहुत तो वो निशान नहीं जाता मेरी आंखों से क्या कि बात देखे क्या हमारे पीरों रशीदें, क्या सिलसिला है। अल्लाह ताला उनके करोड़ों दर्जात बुलंद कराए क्या बात है। और हम सबको उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वाह। मैं बार बार यही कहता रहता हूँ प्रोग्रामों के अंदर कि दुआ करें, उनका नेमुल बदल नहीं है। बेशक ऐसा ही नेमुल है। उनके जाने के बाद बरकत उड़ गई, बिल्कुल कराची ऐसा से भी बरकतें उड़ गई हैं। इस उनका शोबे से भी उड़ वजूद गई, इस उनका शोबे से वजूद भी। जो था बरकत था। तो बेशक। दुआ करें अल्लाह ताला उनका नेमुल बदल अता करे। आमीन। मेरे पास बस 2-3 मिनट बचे हैं, तो 1-2 सवाल मेरे जहन में थे। जी, इरशाद। एक तो ये कि स्पोर्ट्स से आपका लगाव, खेलों के साथ आपका लगाव देखने में आया, और नाजरीन अगर मुमकिन होगा तो वो एक फुटेज आपकी जिसमें आप स्क्वैश खेल रहे हैं, जी। तो आप स्क्वैश प्रोफेशनली खेला करते थे जी, जी। या शौक में, या कितना अरसा, और कहाँ अमारात में ही खेला या जी, कराची में? अल्हम्दुलिल्लाह इमारत दुबई में मैंने स्क्वैश खेला। अच्छा। बहुत मारूफ क्लब है लेजरलैंड। अच्छा। मैंने 1980 में ज्वाइन की थी लेजरलैंड, सही। और वहाँ में स्क्वैश बहुत अच्छे अच्छे कोर्ट थे। जहांगीर खान साहब भी आते थे, अच्छा। उनसे मुलाकातें होती थी वहाँ से। बिल्कुल अब्बास खान जो हैं वो चैंपियन आते रहते थे, और माशाल्लाह हम ट्रेनिंग करते थे, वहाँ खेलते थे। स्टूडेंट लाइफ थी, बहुत अच्छा जवानी का आलम था, तो दोस्त अहबाब के साथ जाता था मैं। मतलब फिजिकल एक्टिविटीज भरपूर बहुत रही। अच्छा, और बहुत अच्छा स्क्वैश खेला मैंने। अच्छा। आप अंदाजा करें कि 25 साल तक मैंने कंटिन्यूस स्क्वैश खेला है वहाँ। 25 साल? जी अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कोई टूर्नामेंट वगैरह? और जी टूर्नामेंट वहाँ हुआ लेजरलैंड की तरफ से, सही। पूरी इमारात की टीमें आई, सही। उसमें मैंने टॉप किया। क्या बात। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे ट्रॉफी मिली वहाँ जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम कि मैंने शौक था मेरा कि मैं स्पोर्ट्स खेलूँ, अपने आप को मेंटेन रखूँ। स्क्वैश को ही चुना या और भी स्पोर्ट्स? नहीं, मैंने स्क्वैश ही चुना क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्ट था, उस क्लब में जाता रहा सही। तो शौक पैदा हुआ। और ये बात बता दूं कि एक दफ़ा आपको इससे लगाव हो जाए स्क्वैश, तो फिर इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, अच्छा। और मैं भी नहीं छोड़ सका, आखिर वक्त तक मैं खेलता रहा। अच्छी अब बात है। कुछ अरसे से पैर में तकलीफ हुई तो इसलिए छोड़ना पड़ा मुझे। अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। आमीन आमीन। स्क्वैश एक देखने में भी बड़ा खूबसूरत एक है, आदमी और अपने आप को दूसरा- मेंटेन बिल्कुल maintain फिजिकल रखता है। एक्टिविटीज के Physically हवाले से maintain। और फिजिकल हेल्थ के हवाले से तो हमारे प्यारे नबी ने भी समझाया, सही फरमाया। बल्कि करके दिखलाया। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुश्ती, घुड़सवारी, तीरंदाजी, जी हाँ। ये मुकाबले साहबा इकराम में बाकायदा जी, जी, जी। स्पोर्ट्स आपने और हजरत इनकरेज arrange किया। करते थे। हजरत जी। को मैंने बताया कि मैं इसको, बहुत अच्छी बात है आप खेलें, खेले जाएं, Activities होनी अपने आप को एक्टिव रखें। बिल्कुल मुसलमानों को स्मार्ट भी होना चाहिए, एक्टिव भी होना चाहिए। आप हजरत चुस्त कहते हैं, होंगे, एक्टिव होंगे, हेल्दी होंगे तो ही अल्लाह की इबादत करेंगे। क्या बात है। एक आदमी लागर वजूद के साथ सुस्ती में और कोलेस्ट्रॉल का डब्बा बना हुआ है, और वो इबादत कर रहा है तिलावत के, उसका मन नहीं लगता। कम मन नहीं और एक चाको चौबंद है, चुस्त है, अभी एनर्जेटिक हो गया है, Exactly। उसकी इबादत का एक अंदाज, एग्जैक्टली, उसको आपको लुत्फ भी आता है इबादत सही में। फरमाया। अच्छा जी, एक WMO की मालूमात हमें आपसे मुतालिक मिली है कि आपने वर्ल्ड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो स्टार्टिंग में जो को फाउंडर्स थे, फाउंडर मेंबर थे, आप भी, यू वर देयर इन द पार्टी, UAE और तो दुबई यूएई में। में, मुत्तहदा अरब अमारात में, सो यू वर देयर इन द पार्टी। Yeah। तो आपने इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल भी आप इसके रहे, और इसके हवाले से मल्टीपल कंट्रीज़ में आपको विजिट करने का भी मौका सही मिला, फरमाया। जिनमें श्रीलंका, जापान और इंडोनेशिया और अमारात की भी बात होती है, और दीगर ममालिक की। तो आप इरशाद फरमाइए कि वो दौर कैसा था। एक मैंने तस्वीर देखी आपकी, हाजी अब्दुल रज़ाक साहब के साथ भी तस्वीर थी वर्ल्ड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म सही। से, तो वो कहाँ की तस्वीर है और WMO से क्या, और बस हम इसी पर इक्तफा करेंगे क्योंकि हमारे पास 1-2 मिनट बचे, तो इरशाद फरमाइए। जी जी, हमारे मेमनों के लीडर थे हाजी अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह, याकूब साहब, अब्दुल रज़ाक याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो जब मेमन में ख्याल आया हाजी साहब के जहन में ही, क्यों ना पूरी दुनिया से मेमनों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, अच्छा, ज़बरदस्त। और लीडरशिप यहीं से आगे आए बिल्कुल और तमाम मेंबर एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए। सही। ये इनका एम्बिशन था मिशन। और अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी अता की। फर्स्ट कन्वेंशन 2001 में हुआ था, तो हाजी साहब के साथ ही रहते थे, हाजी अब्दुल रज़ाक साहब के साथ ही अच्छा। बड़ी मोहब्बत करते थे मुझसे भी, तो साथ ही रहते थे। उन्हीं के नाम पर ही एम्पायर खड़ा है, अब्दुल रज़ाक याकूब, ARY। जी जी बिल्कुल यार भाई। तो माशाअल्लाह वहाँ जब पहला कन्वेंशन 2001 में हुआ तो पूरी दुनिया से डेलीगेशन आए वहाँ मेमनों के, और अनअपोज इलेक्ट हुए हाजी साहब अच्छा। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर। क्या बात। अनअपोज, वाह। तो बहुत काबिल तरीन शख्सियत थी, आपको मालूम थी, माहिर businessman। दुर्वेश सिफ्त इंसान थे वो। तो उनके साथ बहुत कुर्बत हुई थी, बहुत करीब हमारा ताल्लुक था। तकरीबन रोज़ाना उनके ऑफिस में मुलाकात होती थी और वर्ल्ड मेमोरेशन के बारे में प्रोग्राम बनाए जाते थे। इनविटेशन देते थे हम, दुनिया में जो भी लोग आते थे, डेलीगेशन आते थे, हाजी साहब के पास आते थे और वहाँ मामलात सारे मेमनों के तय होते थे। बिल्कुल सही। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हाजी साहब का कि मेमनों को एक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने जमा कर दिया। जबरदस्त। अब मैं समझता हूँ कि वही सदारत जो है
सलमान इकबाल साहब के ऐसा ही हिस्से में आई है और वो निभा रहे हैं इस मनसब को। तो ये हमने देखा था। तो उस वक्त जो पहला कन्वेंशन हुआ था ला मेरिडियन होटल में, तो वहाँ सारा तय हुआ कि मिडिल ईस्ट चैप्टर में कौन होगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कौन। तो उसमें सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारियां जो हैं मुझे दी गई, और मैं फर्स्ट इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल यूएई के अंदर WMO का मिडिल ईस्ट चैप्टर का हुआ, और 9 साल तक मैंने जिम्मेदारियां संभाली अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरी दुनिया में गए हम, और जाहिर है कि वो रिफाई फैसले होते थे, उसमें प्रोग्राम तय होते थे, हाजी साहब हमारे साथ हुआ करते थे, लोगों की मदद भी सुना बड़ी की है उन्होंने, बहुत ज्यादा लोग मदद करते थे। और वो मदद जो करते थे वो हाजी साहब को देख के करते थे कि वो अनडिस्प्यूटेड आदमी है, ये बंदा दुर्वेश आदमी है, ये काम करने वाला है, इनको पैसे दिए जाएं। तो लोग शौक से पैसे देते थे, क्या बात, डॉलर से हजारों डॉलर शौक से देते थे फंड्स में, जमीनें, फ्लैट्स दुबई के, वो सारे हाजी साहब को कहते थे ये हमारी तरफ से आप बांट दें मेमनों को, और जरूरतमंदों को बांट दें आप। क्या बात, न सिर्फ मेमन बल्कि जरूरतमंदों को बांट दें। वो सब वो ताता बंदा रहता था, वो दुर्वेश आदमी थे। तो हमें तो बड़ा रिगार्ड है उनके लिए, उनसे सारी अच्छी बातें सीखी, और मुझे भी बहुत चाहते थे। रोजाना उनके ऑफिस में मुलाकात होती थी हमारी, और रोजाना दावतों का सिलसिला। आपसे बड़ी मोहब्बत करते, बड़ी मोहब्बत। इनके विला पे तकरीबन यूं समझें कि रोजाना कोई ना कोई डेलीगेशन आता था, और उनका टेलीफोन मुझे आ जाता था, आज फलां लोग आए, आप तशरीफ ले आए। और न सिर्फ मैं बल्कि मेरी एहलिया को भी कहते थे उनको लाए, वो ना आए तो गुस्से हो जाते थे, उनको साथ क्यों नहीं लाए। तो इस तरह से घरेलू ताल्लुकात उनसे रहा। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का। बहुत खूबसूरत नशिस्त रही आपके साथ, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए, और इतनी एक हेल्दी और जिसे कहते हैं कि एक्टिव लाइफ आपने गुजारी अल्हम्दुलिल्लाह, और यकीनन उसमें जिस्मानी तौर पर भी आप एक्टिव रहे अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं ना, थ्रू बाय योर स्पोर्ट्स एंड योर एक्टिविटीज़, और आप स्पिरिचुअली भी एनर्जेटिक रहे बिकॉज ऑफ अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब। सही फरमा। ये सब तुम्हारा करम है आका में। आज के लिए बस इतना ही। हाजी मोहम्मद रफ़ीक नूरानी साहब, थैंक यू वंस अगेन दैट यू जॉइन अस टुडे एंड टेकिंग टाइम टू कम एंड आंसर सो मेनी क्वेश्चंस। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक और शख्सियत के साथ, ये सब तुम्हारा करम है आका में, फिर कभी होगी आपसे मुलाकात। आज का मैं आपसे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर, आपका माशाल्लाह इतने अच्छे प्रोग्राम में आपने मुझे मदऊ किया। आपका ग्रेट ऑनर फॉर मी सर। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। प्लेजर सर, प्लेजर, बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि आपको इंस्पिरेशन मिली होगी और मोटिवेशन मिला होगा। अल्लाह ताला हमें तर्ज अमल अता फरमाए जो अल्लाह ने आपको अता फरमाया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये बात अब तक बनी हुई है, ये सब